Hello, good evening, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and it's been a big day here at the World Cup. We've had two great games of cricket, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे. With me in the Pavilion, first up, let me introduce these fine gentlemen here. I've got three former captains of Pakistan, three outstanding legends of the game, three people who have served the game really well and Pakistan really well. First up, Mr. Dependable, one of the most successful test captains in Pakistan test cricket history. I've got Misbah. Misbah, good evening, assalamu alaikum. Hey, good evening, assalamu alaikum. With that, one of the finest wicket keepers, really fast runner between the wickets and a man of crisis, the silver fox of the Pavilion, Moin Khan. Good evening and assalamu alaikum, Moin. Good evening, walaikum assalam. Assalamu alaikum, everyone. Yes. And finally, the man himself, 8-bit Gulkan ke bani, हमारे और आपके सबसे प्यारे, the cricket royalty that we have in the studio with us, the Sultan of Swing, and the King of All-Rounders, Wasim Akram. Good evening and assalamu alaikum. Good evening, assalamu alaikum everyone. अब उनको क्या पता कि आप सिर्फ 8-bit गुलकन के ही बानी नहीं है. You know, आप जो हैं वो तो पिदी फुल चले और फुल चुन के पिदी टी करे और टी करके पिदी फुल चुने. आप उसके भी बाने. You've taught me a lot of good things, Wasim. I've learned a lot from you. You're welcome. ज़्यादा fresh लग रहा है मुझे लगता है. बोलिए, fresh है, बिल्कुल. It's been a great day of cricket. अभी नहा धो के flush हो गए हैं. Over confidence मरवाता है बंदे को. हाँ, मैंने सुना है काफी में बारे में बात सुनी है. Right जी, सबसे पहले तो नजर डाल लेते हैं जो अभी मैच खत्म हुआ है कलकत्ता में. This was Netherlands versus Bangladesh. मैच समरी आपकी खिदमत में पेश करते हैं. This is the match summary. This is how it went down. Netherlands ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ये गुड डिसीजन थी कैप्टन एडवर्ड्स की. 68 रन उन्होंने कंट्रीब्यूट किए टू द 229 run target there. Baresi also putting up 41 runs and then you have all the contributions coming up. Next 50 overs में Bangladesh bowling was okay. It looked like they've really done well to have restricted Netherlands to 229. But in response, Bangladesh batting was completely taken apart by a very meticulous and a very methodical approach by the Netherlands bowlers. And there you have it. To look at Mikran, he picked up those 4 for 23. For Bangladesh, well, it's other than Miraz, there's really nothing substantial. Now, Netherlands won this match by 87 runs. This was by no means a close contest, and really well done to Netherlands. Isse pehle ke aage chale, let's take a look at the points table. Right, here's the ICC Men's Cricket World Cup India 2023. So South Africa sitting right on top with 10 points, looking really good. India trailing right behind them. Now, याद रहे कि South Africa ने 6 मैचेस खेले, इंडिया ने 5 मैचेस खेले और 5 ही मैचेस जीते हैं. So वो they're at number 2. But South Africa have a very healthy net run rate, 2.03. New Zealand is on the third position, even though कि उन्होंने आज का मैच जो है वो हारा है. लेकिन अब पॉइंट्स के हवाले से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों 8-8 पॉइंट्स पे और तीसरी और चौथी पोजीशन पे मौजूद हैं. लेकिन आप दोनों का नेट रन रेट का डिफरेंस देख सकते हैं. न्यूजीलैंड चूंकि वो एक पहला मैच जो उन्होंने खेला था राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड कप, उसकी वजह से अभी तक उनका नेट रन रेट जो है वो बड़ा हेल्दी है. ऑस्ट्रेलिया देयर ट्रेलिंग बिहाइंड देम एंड देन इट्स श्रीलंका. Pakistan holds on to the 6th position, Afghanistan 7th, Netherlands has improved its position, it's come up to 8th, Bangladesh 9th and England is on the 10th position. That's the defending world champions. टॉप की 4 टीमें तो खेलेंगी सेमीफाइनल, मगर बॉटम की 2 टीमें जो हैं, एक तो वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगी और दूसरा जो है उनके लिए जो है वो अगले वर्ल्ड कप के लिए उनको क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे. ये सूरत हाल है and that's your point table. Right, Wasim, let me bring this conversation to you straight away. Netherlands, I mean, look, हम इनको हमेशा जो हैं वो underrate करते हैं. आज भी हमने सोचा था कि it will be a Bangladesh game. But how good were they? So, it was almost as if they had method, they had a plan all along and they just followed and executed that plan. Simple but good. Congratulations to Netherlands and their cricket board, I suppose, and of course all the sporting staff. They've done a wonderful and fabulous job. The way they are in this World Cup, the way they played in this World Cup, beating 2 sides, on the top side, South African side, जो कि unbeatable लग रही थी, उनको इन्होंने हराया जिस तरीके से. और फिर बांग्लादेश cricket test playing nation, like South Africa, one of the top test playing nation, उनके खिलाफ T20 में बंदा टीम जीती है तो कहते हो चलो फ्लूक लग गया. फ्लूक लग गया, मार्जिन. 100 ओवर में
बेटर टीम जीती है हमेशा, उसमें फ्लूक नहीं लगता. सो वेल डन, एवरीबडी परफॉर्म वेल. देयर कैप्टन हैज़ बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन दिस वर्ल्ड कप सो फार. Scott Edwards 60, another 50 today for him. And I think when they and then of course Seibrand Engelbrecht got 35 of 61 and reasonable total 229, 230 to win. And Bangladesh at that stage thought, okay, job done, we can just win this game easily, but no. No. Netherlands bowlers have different plan altogether. Pick of the bowlers, leader of the pack, Mikram, who got 4 for 23 in his 7.1 overs. He bowled quick, he bowled impressive, and I think I wonder at times. मैं पिछले PSL में भी सोच रहा था इसको लेने की कि इसको बस ये उनका जो ऑलराउंडर है बस दिला दे. इवन लोगन वैग भी किसने आज 23 भी किया है, 2 आउट भी किए हैं. इनको लीगों में कोई नहीं उठाता, हालांकि दे वेरी यूजफुल क्रिकेटर्स, दे प्रॉपर ऑलराउंडर्स. एंड नाउ बांग्लादेश, इफ आई हैव अ मिनट, यू सी बांग्लादेश हैज बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर मोर देन अबाउट 20 odd years, I think, easily. Below average World Cup for them. A lot of problems before they arrived in the World Cup. I don't know the politics behind it, the reasons behind it. But first, foremost for any player, especially any player, country come first. Personal differences, likes, dislikes is on the back seat. And it's the same story with them. Every World Cup, वो आपने क्या पोस्टर देखा था आज जो उनके बांग्लादेशी फैन ने उठाया हुआ था? जी, बांग्लादेशी फैन का स्टेडियम में आज लाइव ब्रॉडकास्ट में था कि we always aim for the next World Cup. Yeah, I feel for Bangladeshi fans, I'm not saying कि वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, बट आपको ऐसी टीमों के खिलाफ या अच्छी टीमों को हर दफ़ा क्लोज मैच देना चाहिए कम से कम. एक तो ये बैट्समैन नहीं फाइंड कर सक रहे. आई मीन ऑल देयर यंग, तंजीद गॉट 150 आई थिंक सो फार, लुक्ड गुड, ही इज यंग. ओके, उसके साथ आप रहें, ज़रूर रहें, यंग है, अच्छा हो जाएगा. लिटन दास एवरेज इन द होल वर्ल्ड कप, जो जिस पे बहुत नजमुल शांतो जिस पे बहुत रिलाई कर रहे थे, उसने भी पूरे वर्ल्ड कप में कोई नहीं किया. वही 3 पे भी खिलाया, 4 पे भी खिलाया है. और महमूदुल्लाह को प्लीज़ ऊपर ले आओ. व्हेन योर मिडल ऑर्डर इज़ नॉट फायरिंग, get your main batter come at bat at number 4 or number 5. I don't know what sort of thinking behind it. I hope somebody can explain it to me कि why महमूदुल्लाह is batting at 7, especially when the 3-4 wickets अगर 3 गिर गई हैं तो महमूदुल्लाह को भिजवा दो, वो एक कैंट रोक लेगा जाके. But that's not happening. So it's sorry state. They need to find new batters. They need to sit down, Bangladesh Cricket Board, all their think tank, and decide how they want to run their first class structure. Most importantly, what sort of wickets they want to play on. Yeah, this you have also pointed out earlier as well. आपने पहले भी इसके बारे में बात की थी. महमूदुल्लाह को आज भी बहुत टाइम था उनके पास, बहुत सारे ओवर्स रहते थे. आज वो आए, जिस तरह वसीम ने कहा, उनके पास खुला टाइम था. पिछले मैच में उनको खुला टाइम मिला था तो सेंचुरी उन्होंने गाड़ी, बट आज वो परफॉर्म नहीं कर सके. आज उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में 20 रन बनाए. अब एक जैसे भी वसीम मैंने कहा कि वाहिद प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में नज़र आए, और आज फिर 1 नंबर डाउन कर दिया, उनको फिर 7 नंबर पे खिलाया है. पिछले मैच में 6 नंबर पे जाके 100 रन किए थे. आई डोंट नो कि मैनेजमेंट क्या कर रही है, क्या सोच रही है, क्या प्लान्स हैं, बट बिल्कुल जो बैन इन फॉर्म होता है उसको आप कोशिश करते हैं उसको यूज़ करें ऐसे नंबरों पे जब आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई बांग्लादेश की पूरी थिंक टैंक के अंदर कोई प्लान ऐसा उन्होंने सोचा भी हो कि हम ऊपर खिला देंगे. प्लेयर जो सबसे ज़्यादा फॉर्म में, ये जो गलतियाँ होती हैं, यही गलतियाँ आपको नीचे की तरफ ले जाती हैं. हमारे सारे पैनल ने यही बोला था कि आज बांग्लादेश कामयाब होगी. वेरी ट्रू. बट मैंने ये कहा था नेदरलैंड कामयाब होगी. उसकी मेन वजह ये थी, उसकी मेन वजह ये थी ये जायचे नहीं, वो दे आर प्लेइंग एज अ टीम. वो नज़र आ रहा है, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं. ऑल्दो आज बांग्लादेश ने कैचेस भी काफ़ी छोड़े, उनको मौका दिया 29 करने का. बट जो अच्छी बात थी नेदरलैंड्स की कि उन्होंने पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश की. दैट्स द पॉइंट. और बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश सिर्फ 42 ओवर्स में आउट हो गए. इतना अंडर प्रेशर आई इसी वजह से क्योंकि वो कांस्टेंट प्रेशर डाल रहे थे, विकेट ले रहे थे. और विकेट पता है आपको, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट हो, प्रेशर ही विकेट से आता है. और कहीं मौका नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल भी बांग्लादेश को कि वो कम बैक कर सके. All right, with that, we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back, there's more on the other side. Don't go away, keep watching.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports at the Air by Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. Two great games of cricket we had. The first one between Australia and New Zealand. अब से कुछ देर बाद हम उसके बारे में बात करेंगे. मगर इस वक्त हम बात करें Netherlands versus Bangladesh game that Netherlands has won, and they looked really good, clinical throughout this whole effort. With me in the studio, I've got Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. Shoaib Malik is traveling for a pre-commitment, family commitment that he had. He will be joining us back shortly. And let me bring this conversation to you now, Misbah. आज बेशक नेदरलैंड्स ने मैच तो अपना जीत लिया, 229 रन उन्होंने बनाए, बड़े ज़बरदस्त स्कोर उन्होंने किया, बट उस वक्त तो नहीं लग रहा था कि ये पार स्कोर है और बांग्लादेश के लिए कोई बड़ा नहीं होगा. बट नाउ दैट दे वन इट वीक, लेट्स जस्ट गो टू देयर टॉप ऑर्डर, देयर ओपनर्स स्पेशली. इफ समहाउ नेदरलैंड्स कैन मैनेज टू हैव सम रेगुलर गुड ओपनर्स जो कि उनको एक अच्छा साथ दे सकें, तो दे कैन इजीली बिकम अ 270-275 टीम रेगुलरली अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक. बिल्कुल, इसका थोड़ा सा आपको एविडेंस वहाँ पे मिला था जब पाकिस्तान ने टूर किया था, तो इनके एक ओपनर एटलीस्ट वहाँ रन कर रहे थे, विक्रमजीत सिंह. तो 320 चेस 300 प्लस आलमोस्ट वो चेस कर गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट. बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके ओपनर्स रन करें, एक बेस सेट करें, बट आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू देयर मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर. फाइट ख़त्म नहीं होती, ऐसे लगता है कि 5 आउट के बाद इनकी बैटिंग शुरू होती है. एंड फ्रॉम नो वेयर हमने बहुत सारे मैचेस में देखा है यार 70 पे 5 आउट हों एक टीम के, और वो ऐसी टीम भी नहीं है कि जो रेगुलर जिनको चांसेस मिले इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के, वहाँ से ऐसा कम बैक करते हैं साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट. फिर आज जिस तरीके से उन्होंने नीचे से आके रन्स किए हैं, होप नहीं छोड़ते, फाइट करते रहते हैं. और जो इनके कप्तान हैं बड़ा ज़बरदस्त इनकी बड़ी, अब देखें 2 इम्पैक्ट, इतने बड़े इम्पैक्ट की 2 इनिंग्स हो गई. एक पिछला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ये वाला मैच, फिर साइब्रेंट जो है इन्होंने नीचे से बहुत रन्स किए हैं, हर इंपॉर्टेंट जगह पे आके पार्टनरशिप्स की हैं. और लोअर मिडिल ऑर्डर बल्कि इनके बॉलर्स इनको डिसअपॉइंट नहीं करते. आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस दे दे ऊपर से अच्छे स्टार्ट का, तो आई थिंक कि ये किसी भी टॉप क्लास टीम को चैलेंज कर सकते हैं, और कर रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में शो करा रहे हैं. जी हाँ, ये एडवर्ड्स की इनिंग्स है, उनके कप्तान है. बाय द वे ही वाज बोर्न इन ऑस्ट्रेलिया, एडवर्ड्स, एंड ही इज वेरी गुड. स्पेशली अगर मैं देखूं कि फास्ट बॉलिंग को तो वो अच्छा खेल ही रहे हैं, बट द वे ही प्लेज अगेंस्ट स्पिन, वो जो हमारी खसूसियत होनी चाहिए थी, हमारे बैट्समैनों की जो शॉट्स होनी चाहिए थी, वो बड़े आराम से स्वीप शॉट्स निकल के सामने मारना, कट शॉट, सारी वो क्रीज को यूज़ करना, सारा कुछ वो खेलते हैं. और इतने प्रेशर के अंदर भी आके डोमिनेट करते हैं स्पिनर्स को, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी. और काम रहते हैं, जैसी मर्जी सिचुएशन, आप डीमोरलाइज हो जाते हैं जब आपको इतनी कुट पड़ रही हो, टीमों से 350 हो रहा है, 400 हो रहा है, और आप बीच में जो है बिल्कुल वन साइडेड गेम्स हार रहे हैं, बट स्टिल दे आर इन हंट. जहाँ उनको मौका मिलता है वो डेंट कर देते हैं किसी न किसी टीम को. और दूसरा, ऐसी परफॉर्मेंस के बाद इन्होंने 1-2 पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस की, 1-2 अपसेट किया, आई थिंक साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया था, और उसके बाद कोई ख़ास इनको पजराई नहीं मिली. आई सपोज आईसीसी की तरफ से कि ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट होनी चाहिए, ऑल्दो इनके क्वाइट अ फ्यू क्रिकेटर्स दे प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका इन देयर डोमेस्टिक क्रिकेट. और लास्ट ईयर 30 विच वन ऑफ द 13 टीम्स, ये नेदरलैंड, इन द सुपर लीग विच गारंटीड देम 24 ODIs इन 3 years. लास्ट ईयर ये प्लान बना था, बट आईसीसी हैव नाउ अबॉलिश्ड दैट सुपर लीग too, which means Netherlands won't be getting much ODIs in future. That's not fair on them. They work hard, and look, they've beaten 2 test sides, so that should count. Yeah, that should definitely count. ग्लोबल स्पोर्ट्स हमने बनाना है, हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि ये ओलंपिक में आ जाए, फिर ऐसी टीमें जो जिनके अंदर इतना पोटेंशियल है उनको सपोर्ट करना मेरे ख्याल में ज़रूरी है सबके लिए. माइंड यू, ओलंपिक्स में हम आ गए जी 2028 बिल्कुल आ गए हैं. आई नो कि 28 में आ रहे हैं हम, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी वो कोशिश क्यों है कि हम इसको एज अ ग्लोबल स्पोर्ट देखना चाहते हैं. क्रिकेट वाहिद गेम है, आप देखें वहीं 10, 12, 13, 14 पे हम अटके हुए हैं. ये फैल नहीं रही उस तरीके से जिस तरीके से दुनिया में यहाँ बाकी मुल्कों को खेलनी चाहिए. ऐसे मुल्क जो कि जिनके पास क्वालिटी है, आप अगर देखें बड़ी ज़बरदस्त टीम है, उनको हमें गारंटी करना चाहिए बीइंग आईसीसी कि भाई इनको क्रिकेट मिलनी चाहिए. बिल्कुल मिलनी चाहिए.
thought by Wasim Akram was also very nice कि इनके ज़्यादा और players को हमें PSL में भी जो है वो engage करना चाहिए, and they should come play. But They're good enough. They're good enough. They're good enough. In fact, they're better than a lot of the international players of some of the other teams, including Pakistan. उनमें से कुछ इनके all-rounders जो हैं वो ज़्यादा effective नजर आए हैं इस World Cup के अंदर. And anyway, congratulations to Netherlands. Very well played. Congratulations to all the Netherlands fans everywhere in the world, to the Orange Brigade everywhere. Well done, guys. To the team, really, we really appreciate your spirit. And apparently, orange is new black. Oh, the orange is new black, yes. And so with that, we now move on to the first match of the day. आज जो एक और बहुत बड़ा मुकाबला था दोस्तों, धर्मशाला में था. There was a run fest there. Huge. ये मैच समरी सबसे पहले आपके सामने लेकर आते हैं. This is how it went down in Dharamshala. It was an incredible game of cricket. Australia batting first. Travis Head coming in, 388 का टोटल लगाया ऑस्ट्रेलिया ने 49.2 ओवर्स में. मगर आप जरा स्कोर कार्ड देखिए. Look at what Travis Head did. 109 of those many balls. It's just amazing. Then also Warner, Maxwell, Inglis, everybody coming to the party there. For the bowling on New Zealand side, where they wouldn't be happy with those figures. They were expensive, except for Glenn Phillips, who picked up 3 for 37. Everybody else was expensive. That's how Australia reached the 388. But look at what happened in response to that total. New Zealand were out of the gates aiming for that target. They came out all guns blazing, and this young man, Ravindra, every time we see him, every time there is a big match and a big chase, he has come to the party, putting up that century, that very special century. We'll talk about that in a moment. And then Nisham almost closed it for New Zealand. Just got a little unlucky on those that last full toss that he received. It would have been a different story, a different scorecard had he connected. But it's just so good to see such a great close contest of cricket in this World Cup. After yesterday, South Africa and Pakistan game, this is the second game that we've seen. Australia winning this one by 5 runs. A big congratulations to Wasim Akram के ससुराल को. Yes, हमने ऑस्ट्रेलिया कहा था, मैंने और मोइन ने ऑस्ट्रेलिया सब आपके साथ in sync Let me start this. When the first 2 overs started, New Zealand की bowling के, it was a mayhem. The whole team was all over the place, and after 4th over, it was a chaos. You know, they didn't know what hit them. So it started with mayhem, went to chaos, continue. And then after 2 overs, it was total carnage. It really was. I like the progression that you've just put to that. Yeah. Mayhem, carnage, and chaos. Sorry, mayhem, chaos, and total carnage. And total carnage. That's well played. I mean, imagine the way they started. I think both the sides, Misbah, Moin will agree with me. It appeared they are playing different game altogether. Yeah. Different. हम पाकिस्तानीज़ के used to नहीं हैं. So the big question mark to me at the time was, maybe not the right question. We'll talk on the game. We have plenty of time. कि क्या हम ऐसी cricket खेल सकते हैं? Actually, I think it's a अगर very इसका important आंसर question. आप लोगों के पास है तो later on ask the pavilion में ज़रा भेजिएगा. The way they play today and the way they chase today, you know, एक stage पे when you score, I mean, what a performance from David's first over. उन्होंने उनके मेन बॉलर को पकड़ा है पहले. दोनों को समझ नहीं आ रही क्या करना है. And you know, both sides, then Travis Head पता नहीं घर से सेट आया, इंजर आया है. They were waiting for him. उसने आते ही 59 बॉल पे 100 and good shots, not just slogs. They just toyed around with the bowlers. छिक्का मारे, सिंगल कर लें, चौका मारे, दुका ले लें. It was just unbelievable performance. It was unbelievable. It's what a game of cricket. So well done, New Zealand. Well done, Australia. This is how cricket should be played. Well, this is how modern cricket is being played, and it's only going to get more and more competitive and more, it'll just change. You know, interestingly, while this game was going on, I saw a video जो कि श्रीलंका के एक प्लेयर जो हैं वो विराट कोहली को कहीं नेट्स में मिले, और अभी ये इसी वर्ल्ड कप में just a couple of days ago or something, and he was asking him for his advice and all that, and they recorded the advice. So when Virat Kohli was speaking to this young Sri Lankan, I think it was, I'm not sure who it was, but let me just say, so the video basically, you know what Virat Kohli said? Virat Kohli said, it's about skill, that's the first thing, fitness was the second thing, and then visualization was the third thing. Yep. Skill, fitness, visualization.
and he said, And what is visualization for so it's like average you visualize. young So kid? आप सोचते हैं, of course, the greats would tell you better. Yeah, I can also explain after you. Yeah, okay, आप सोचते हैं. In my case, I would say, you know, मैं शो पे आने से पहले I'll think of a few things. I'll run it in my head. अच्छा मैं ये बोलूँगा, इस तरह करूँगा, ये होगा. जो मेरे पास क्यू शीट आई है उसको मैं किस तरह improve कर सकता हूँ. कौन सी conversation करूँगा, कौन सी नहीं करूँगा. So that's my visualization process for this show, for example. Yeah. Now you may explain a little. I suppose my late wife Huma, उसने मुझे सिखाया था ये. She was a psychologist, so she taught me in the beginning how to visualize before the game, night before the game, quietness around you in your room alone, close your eyes and think what you want to do tomorrow. कल अगर मैं चाहूँगा कि मुझे 4 विकेटें मिलें, imagine every batsman, not for long, 5-6 minutes, quiet. Mind should be at peace at the time. Mobile silent, phone off the hook, just 3-4 minutes. Not just in cricket. I think if you're a big day tomorrow at job और कोई आपका वो है, आपको कोई homework मिला है, suppose as a young kid. Yeah. So that's what visualization is. Visualize कि मैं कल ball करूँगा, कि विव रिचर्ड्स को off stump के बाहर मारूँगा, अंदर आएगा, डंडा उड़ेगा, and most of the time it happens. ये जिस तरह मोइन जो है वो आते हुए स्टूडियो, वो घर से निकलने से पहले विजुलाइज करते हैं कि मैं आज कौन से रास्ते से वसीम को घुमाऊंगा और मैं कहाँ चट मारूंगा. एक ये हो गया. या जिस तरह मिसबा विजुलाइज करते हैं हर खाने से पहले. No, you visualize about food. But one more thing to add है, जो वसीम भाई ने बात की, 99 वर्ल्ड कप में हमारे साथ रिचर्ड पाइबस एज कोच काम कर रहे थे. जी पाइबस, आई रिमेंबर. He used to bring some very soothing music before the start of the play, और वो तमाम लड़कों को before we start the warm ups, लड़कों को बिल्कुल आंखें बंद करके लिटा देते हैं. मुझे पर्सनली बहुत फायदा है जब विजुलाइजिंग की बात हो रही है, तो वी यूज्ड टू थिंक कि आज मैच में कौन सी ओपोनेंट है, कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से हमारे बॉलर्स खेलेंगे, किधर उनको शॉट्स खेलने हैं, कहाँ पे बेटर ऑप्शंस हैं आपके पास अपने शॉट्स को एक्सप्लोर करने के लिए. उससे बड़ा फायदा मुझे बहुत पर्सनली फायदा इसलिए हुआ because Moin is kind of a bhatkiru. This is a nickname for my wife Shanira, Okay. and she knows the meaning of bhatkiru. Bhatkiru, Yeah. all right. And right now I am visualizing a break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam और आप देख रहे हैं Sports and Sports in the ARY Zap app, and we are talking about the first game that happened today at the ICC Men's World Cup. It was New Zealand versus Australia. और आपने ब्रेक पे जाने से पहले सुना विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे. I brought in the विराट कोहली conversation in there कि वो विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, और फिर मैंने विजुअलाइज की ब्रेक, और देखें ब्रेक हो गई वसीम. कमाल नहीं हो गया. All right, let's talk about Travis Head. That innings by Travis Head today was seen. What was that? Misbah, tell us what was that? वो क्या था? जहाँ से ख़त्म किया था उन्होंने पिछला टूर, इंजरी हुई थी वहीं से शुरू हुआ है पूरा साल. द वे ही बैटेड टेस्ट मैचेस में, आपने शायद देखा होगा ड्यूरिंग एशेज, द वे ही बैटेड, और फिर वनडे क्रिकेट, साउथ अफ्रीका सीरीज, ही इज जस्ट कैरिंग दैट फॉर्म. 7 sixes and 10 fours today. बिल्कुल ऐसे सिर्फ आई थिंक वो वीक ने प्रोटीन नहीं खा रहे पाए ज़्यादा. नॉर्मली दोनों जो ये बॉलर हैं इनके, दे आर अ वेरी गुड मैचअप अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स. ट्रेंट बोल्ट वन ऑफ द बेस्ट अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स, और हेनरी उसका बॉल भी बाहर निकलता है. दे हैवंट जस्ट लेट देम सेटल डाउन. आते ही वो ऐसी उन पे चढ़ाई की है कि वो कुछ समझ नहीं आएगा भाई साहब. 10.5 and over. बिल्कुल वो 2 ओवरों के बाद चेंज हो गया. बाद में भी आया तो दे जस्ट kept him 10 and over. Even Santner went for quite a bit, 80 runs. Usually he doesn't give away unnecessary runs. Both the left-handers just took him to cleaners. Unbelievable. Those shots against spin, against pace, ऐसे लग रहा था फास्ट बॉलर्स को भी. देखिए ना दोनों आज हुआ है स्कोर ऑलमोस्ट 771 टोटल मिला के दोनों इनिंग्स का. एक ने किया 388, एक ने किया है 383 न्यूजीलैंड ने. और अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की तरफ से 100 हुआ है और 150. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 100, 150. बट व्हाई द टोटल इज सो बिग? Look at their strike rates. जी ये तो बहुत बड़ा. That's what. And this worries me the most because ये हम देखते नहीं है मोइन ये वाली स्ट्राइक रेट्स पाकिस्तान में. हम ये फर्स्ट क्लास में भी नहीं देखते इस तरह के पाकिस्तान के. मैं भी यही कहने जा रहा था कि ट्रेविस हेड को जो बैटिंग करते हुए देखा, इतने अरसे के बाद कमबैक किया, मैंने दुनिया की किसी और टीमों में नहीं देखा ऑस्ट्रेलिया के अलावा कि इस तरह कमबैक
प्लेयर्स करते हैं। उसकी रीजन क्या मोइन? प्लेयर्स आई थिंक उनका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बहुत एनवायरनमेंट भी स्ट्रक्चर, कंपटीशन है वहाँ पे, हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर। प्रीवियसली तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हैं एक दूसरे के पीछे, बीच में अभी पिछले 4 सालों में मैं देखा थोड़े कम हो गए थे बिकॉज ऑफ T20 आई थिंक। बट जो अब ये मोमेंटम गेन करना शुरू किया, आते ही कितने मैचों के बाद आए, उसको पता था मिचेल मार्च ने रन किए, उसको नीचे लेके गए एंड ही जस्ट केम एंड स्टार्ट हिटिंग एवरीवेयर, लाइक कहीं भी नज़र नहीं आया बिल्कुल भी कि शुभ हो कि ये कम बैक करने जा रहा है। पहले नॉर्मली हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है, जब भी कोई प्लेयर आता है उसका कम बैक होता है। अब्दुल्ला शफी को भी देखा हमने एशिया कप के अंदर, वो आए, सेटल हुए, फिर रन बनाए, यहाँ पे भी वो चीज़ नज़र आ रही थी। कहीं भी ये वाला फ्लेयर नज़र नहीं आया कि आते ही टोटली अटैक करें आप, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें आपको चाहिए कि आपको अटैक करना है, जाके डोमिनेट करना है। दैट्स हाउ यू गेट द मोमेंटम फॉर नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, और जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं उन पे भी बड़ा क्लियर फर्क पड़ता है। 19 ओवर्स के अंदर 175 पे पहली विकेट गिरी है, इट वाज अमेजिंग। आई थिंक जिस तरह बैटिंग, ये बहुत रेयर नजर आता है इस तरह के बैट्समैन। I think Wasim summed it up the best today. Just the best today. 100%. I know it ended up with carnage. It started with chaos, went to mayhem, and ended with carnage. I think it started with mayhem. Yeah, mayhem, chaos, carnage. MCC. Mayhem, chaos, carnage. That's how it went on. Now let's talk about another innings that I thought was a very special innings today, and that was from Pat Cummins. Pat Cummins ने कितनी ज़बरदस्त innings He's a very dangerous batter. He did, I think, one of the fastest 50s in IPL last year or year before. He bats at number 8. He's unassuming, but today his strike rate was 264. I missed that he's batting a ये bit. आ रही है आपकी स्क्रीन पे वसीम. Look at the way he's played some of these very delicate cut, late cut there. But look at that. शॉटें मारी हैं उन्होंने उस वक्त रिकी पॉन्टिंग कमेंट्री में थे, तो ही वाज जस्ट मेंशनिंग कि होमवर्क सही नहीं किया न्यूजीलैंड ने इनके अगेंस्ट। दैट्स वेयर ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप उनको मौका दे रहे हैं कि टांग को क्लियर करके सामने, सो ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे ये मोस्टली अपने बड़े शॉट खेलते हैं। यू हैव टू बॉल इनटू द पिच टुवर्ड्स हिज बॉडी कि वो ये लेग साइड पे क्लियर करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस गेम न्यूजीलैंड जब रिव्यू करेगी मैच का, तो वो सोच रहे होंगे ये जो 4 छक्के इनसे यहाँ पे 37 रन हमने खाए हैं, यहाँ अगर थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट कर लेते तो एंड रिजल्ट आप देखें, मार्जिन कितना कम था एंड पे। बिल्कुल ऐसे ही है, वही था। एंड आई थिंक दिस वाज रियली द रियल नेल इन द कॉफिन टुडे, बिकॉज वो जो 37 रन 264 के स्ट्राइक रेट से, हमारे पास ऐसा कोई नंबर 8 है मिसबा? हमारे पास ऐसा कोई नंबर 8 है मोइन? अभी फ़िलहाल इस टीम में तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इवन इन द 11 मुझे थोड़ा सा फील होता है कि कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा मौका आता है। एक 7 इफ्तिखार के अलावा, इफ्तिखार के पास सही पावर है जो शॉट्स खेल सकता है, बड़ी हिट्स मार सकता है, बट नॉट इन द बॉलर्स लाइक हम अभी अज्यूम कर रहे थे। इफ्तिखार डज टेक हिज टाइम अ बिट। ही डज टेक टाइम। वसीम की जैसे बात की थी, वसीम ने डोमेस्टिक में कोई एक ऐसी इनिंग खेली थी, वहाँ हमारे एक बड़े अजीम ऑलराउंडर ने उनको कह दिया था नाउ अनदर ऑलराउंडर इज कमिंग अप, बट अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान टीम से उन्होंने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली जिससे हम कह सके कि हाँ। इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी मोइन आई वुड लाइक टू नो कि वसीम अभी तक कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है और कितने ओवर्स हैं उसकी बेल्ट के अंदर, because his batting is not improving. Not more than 30 होंगे, मेरा नहीं। And his batting is not improving at all. Hardly, मुझे लगता है यही होगा, 10 के आसपास नंबर होंगे शायद, 10 से कुछ ज़्यादा मैच हो, not more. But I have to. Yesterday he bowled really well. Yeah, he did. I mean, yesterday he came to an age, by the way, guys. He bowled it heart out with pace, with good length. So that shows the talent is there, but consistent और थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा ऐसे लड़के। पॉलिश भी तो कर रहे हैं ना ऐसे टैलेंट को, नए टैलेंट को पॉलिश भी करना है। एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है उसका, गुड आर्म हर लिहाज से। जो यहाँ इस साइड से जितने भी फास्ट बॉलर्स है क्रिकेट से, बहुत मेहनती भी हैं, बट अगेन वसीम भाई की बात कि वो स्टॉक बॉल जो है आपने डेवलप करना है, नया बॉल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एंड देन जो मैंने एक चीज़ देखी है कि मिडल में हमारे पास वो टैक्टिकल जो हमारी टैक्टिक्स होती हैं बॉलिंग, और डिफरेंट लेंथ्स पे आपने बॉलिंग करनी है, थोड़ा सा फोकस करना है आपने बैट्समैन को, वो चीज़ें, वही बात है, वो फर्स्ट क्लास लंबी क्रिकेट खेलने से आती हैं, वो मिसिंग है।
बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपको कोई कोच नहीं सिखा सकता, वो खुद ही आपको वो करने से ही आएगा। ट्राई करने से बट क्रेडिट टू हिम यस्टरडे, उन्होंने मार्करम की विकेट ली थी, वहीं से मैच बना apart था from पाकिस्तान wicket, the way he bowled. He bowled overall, he did a really good उनकी job. बैटिंग डेवलप हो सकती है मेरे ख्याल में, इतने अरसे में अब 2 साल 1.5 साल एक हो उन्होंने गए। कल छक्का भी बड़ा जबरदस्त मारा था, you know, which was like a But we very don't want one chikka, yeah, no, na? I know we want regular, but I One know, off but I'm chikka. saying is Wasim, he has the potential. Yeah, The no potential doubt, is no there. dought. उस potential, उस 6 के साथ ही बंदे को अंदाजा हो जाता है, you know, there is potential there. Yeah. Right, with that we're going to take a break here, but when we come back we'll talk about the New Zealand innings. Don't go away, keep watching. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड वाइज ऐप और हम लोग बात कर रहे थे आज के पहले मैच की, व्हिच वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। व्हाट अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। आई हैव गॉट विद मी 3 former captains. I've got Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. Shoaib Malik is away for some family commitment. He will be joining us later. Right, जनाब, बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की इनिंग्स की। Now 388 was the total that Australia put up, but boy did New Zealand made a chase for it. Now कॉनवे का थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई मिसबा, वो जो कैच मिचेल स्टार्क ने पकड़ा है वो कोई बड़ा ही इम्पॉसिबल सा कैच है जो उनके हाथ आ गया। आई मीन फॉर समबडी हु इज दैट टॉल टू टेक दैट काइंड ऑफ अ कैच एज अ फास्ट बॉलर, इट्स रिमार्केबल। बैड लक भी है बैट्समैन की कि आपने यूं खेला है, एक ब्लाइंड स्पॉट पे बॉल गया और सीधे ही चला गया। सीधा तो नहीं था खैर, नहीं, उन्होंने बड़ा बिल्कुल अच्छा कैच किया उन्होंने, बट ये बैड लक है बैट्समैन की कि ऐसी जगह पे बॉल गया। बाय द वे मिचेल स्टार्क caught it on his wrong side. बिल्कुल, You know, बहुत ही जबरदस्त अगर कैच हम आपको दिखा सकें आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिस वाज कॉनवेज विकेट। इट वाज अगर आ गई तो ठीक है, बट इट वाज अ फैंटास्टिक कैच एंड एट वन पॉइंट इट लुक्ड लाइक दैट कॉनवे एंड यंग विल गिव न्यूजीलैंड ए बिग स्टार्ट एंड देन ऑस्ट्रेलिया caught up with them. मिचेल स्टार्क ने दोनों कैच पकड़े। ये एक्सीलेंट कैच। इसे तो हम अपने ये जुबान में कहते वसीम, हैं। look at it in slow motion. Yeah. Look at that. Look at him go. Look at Oh, wow. और दूसरा जो यंग का भी जो कैच पकड़ा है वो भी स्टार्क ने पकड़ा, और जी। वो ऑलमोस्ट आई डोंट नो उस शॉर्ट थर्ड मैन आप कहेंगे शायद, सर्कल पे खड़े थे, वहां तक कैरी हुआ बॉल। इसे हम पंजाबी में कहते थे अन्ने दे पैर थल्ले बटेरा। That was incredible. I mean, that shows his fitness. That I mean, he's 6'5", 6'6", That's what I'm saying. and flexible. Yeah, that's stretchy. Yeah. Name it. Unbelievable. Just बट आज मजे की चीज जो इन्होंने बॉल की जी। है आखिरी ओवर में, जो पहला बॉल वाइड किया था। ये क्या थे? शॉर्ट थर्ड मैन थे, डीप स्लिप थी, क्या थी ये? वो 30 यार्ड के सर्कल में। Yeah, it's Field bit fine, placing check fine करे। for third man, Yeah. for third man as well. It's a very That's a master class आप कहेंगे, फील्ड प्लेसमेंट। yeah, right straight to him, man. हाँ जी, बिल्कुल Incredible. Sorry, मोइन, आप इसी कह रहे तरह थे। जिस तरह हमने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, इमाम को जिस तरह उन्होंने आउट किया, उस जगह पे परफेक्टली प्लेस किया फील्डर। ये वन ऑफ दी ऐसे मैचेस होते हैं जिसके अंदर ये हो जाता है। आई थिंक बहुत ही स्मार्ट मूव था कि शॉर्ट यानी थर्ड मैन को आप आपने कह रहे शॉट हैं कि दिया। तुक्के में हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, वो तो प्लानिंग के तुक्के साथ में नहीं करते होता। देखिए, तुक्के के कैचेस उस वक्त अच्छे होते हैं जब आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो कि मेरे पास कैच आ सकता है। आप रेडी नहीं होगे तो ये कैच गुजर जाते हैं। बहुत कैचेस छूटे हैं, हमसे भी छूटे हैं, बहुत लोगों से तुक्के छूटे में कैचेस वो होते हैं जो आई मीन आप कैच की तरफ गए हो, ज़हन में ये है कि मैंने ये कैच करना है और मेरे पास आएगा, उसमें आप इधर उधर डाइव मारो तो फंस जाए, या एक हाथ से गए तो फंस जाए। right, बट द यू नो पीछे वो पूरा प्लान और हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने पकड़ना है ये जो आप कैच। लोग वेटरन्स क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें जो कैचेस पकड़ते हैं वो तुक्के होते हैं। वो अगर पकड़े क्योंकि किसी का दिल नहीं चाह रहा होता, अगर पकड़े हम तो हाथ ही नहीं डालते, वही अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, वाला किसी का दिल नहीं चाह रहा होता वहाँ कैच पकड़े, वो हाथ रखते चिपक, वो तुक्का ही चिपक होता गया है। तो चिपक गया। इन दोनों कैचेस में परफेक्ट टेक्निक आप कह सकते हैं। हालांकि फास्ट बॉलर हैं, इवन ये जो स्लिप वाला कैच है शॉर्ट थर्ड मैन पे, द वे ही जस्ट कॉट दैट, आप पूरा देखें कि मूवमेंट जैसे स्लिप के फील्डर की होती है, पूरा आई ऑन द बॉल, पूरा उसको गैदर जो विकेट कीपर। ये नहीं कि हमारे बॉलर्स अगर यूज नहीं हो regarding in Botham, he was a very good fielder. Catcher. of The best slips, yeah. One of fielders. the best, yeah. You see, he was so different. Ian Botham, उसको Flintoff ने भी कॉपी किया बाद में। Flintoff was brilliant as well. Their hands were like buckets. Right. And अगर जैसे फर्स्ट स्लिप कीपर के पीछे खड़ी होती है 2-3 फुट, और जो सेकंड स्लिप होती है, अगर ये कीपर खड़ा है तो सेकंड स्लिप इसके साथ होती है, थर्ड स्लिप थोड़ा आगे होती है, फर्स्ट स्लिप पीछे होगी। तो Ian Botham, अगर ये सेकंड कीपर ये है, सेकंड स्लिप ने यहाँ खड़ा होना है, तो वो 5 फुट आगे खड़ा होता था।
not afraid to take the No, ball and pace. उसके तुम record देख लो, एक हाथ से catch, यहाँ क्या reflexes, all about reflexes maximum reach and कर लेते हैं ना ball को, wanting cut कर to लेते हैं. catch, Yeah, wanting yeah, to yeah. be there Be instead of वो यार मैंने slippage ना बुला हाँ, लेना. मेरी तरफ बॉल ना आ फिर जाए. कितों catch होना है? गेंद जाए तो जाए That's so fun. गेंद जाए तो जाए कितो. क्या बात है. All right, G. Rachin Ravindra, what an outstanding player. find he has been for New Zealand and for the world of cricket, because I think this young man is going to be playing cricket for a very long time and he is going to leave his mark in cricket history. Misbah, what a fine batsman he's turning out to देखिए be. टैलेंट होता है, आपके पास स्किल भी होता है, लेकिन इस किस्म की गेम अवेयरनेस, द वे ही बैटेड, हर उस जगह को एक्सप्लॉइट किया और जहाँ पे भी उनको नज़र आया है, देखें मिड ऑफ ऊपर है, निकल के वहाँ पे शॉट खेली, पुल शॉट, ज़रा सा शॉट ऑफ लेंथ बॉल किया, वो कट, ही जस्ट प्लेड ऑल अराउंड द ग्राउंड. और जितने भी टॉप क्लास बॉलर हैं उनके अगेंस्ट द वे ही अटैक दैम, मिड ऑफ ऊपर थी, ऊपर से शॉट खेला, सो ही इज़ प्लेइंग ऑल अराउंड द ग्राउंड. 94 पे इस किस्म का शॉट मारना, छक्का मारना, बिकॉज ही वाज गोइंग फॉर द टीम गोल के यार मैंने रन्स करने. और 406 runs at an average of 81.20 with 2 centuries in this World Cup. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेम्परामेंट देखें और गेम अवेयरनेस. इतनी यंग एज में, आज वो भी वॉटसन भी कमेंट्री में ये बात कर रहे थे कि एज 22-23 एज है. इस एज में इतनी गेम अवेयरनेस और इतना ज़्यादा गेम सेंस कि ही इज़ रिएक्टिंग टू एवरी बॉल. उसको जब उसके एरिया में बॉल आती है वो सोच नहीं रहा कि मैंने ये शॉट खेल लिया, ही जस्ट गोज़ फॉर इट. और कितने मज़े से वो उस शॉट को वहाँ पे प्लेस करता है. सो I think it's a great find for New Zealand. No question about that. Then came Daryl Mitchell. बड़ी ज़बरदस्त. By the way, रविंद्रा ने अपनी जो सेंचुरी है 130.33 के स्ट्राइक रेट से की है, और फिर पीछे डेरिल मिचेल ने आकर 105 के स्ट्राइक रेट से जो है वो अपनी निफ्ट सेंचुरी की है. क्या बेहतरीन बैटिंग रही है डेरिल मिचेल की. बड़े ज़बरदस्त प्लेयर Mitchell throughout the tournament he was the I think man in form. जिस तरह स्पिनर्स को उन्होंने बैटिंग की है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, एज वेल एज ऑन द फास्ट बॉलर्स. जो ये शॉट आई थिंक सबसे बेहतरीन शॉट तो यही होता है कि आप सीधा स्ट्रेट मारें. और ये देखें जैसे ये वाला स्पिनर्स को, हाँ बिल्कुल अटैक किया, यू नो डाउन द विकेट आए, डाउन द विकेट आके अटैक किया. मिचेल मार्श को भी उन्होंने जिस तरह अटैक किया, लाइक विद वर्टिकल बैट, जिस तरह बैटिंग की, आई थिंक सबसे ज़्यादा फॉर्म में मुझे नज़र आए ऑन बोथ लाइक स्पिनर्स एंड द फास्ट बॉलर्स. और जिस तरह वो डिसअपॉइंटेड था आज आउट, वो थोड़ा सा अंदर लग गया बैट के, अदरवाइज दैट कुड हैव बीन. It was Everything apart from the great game, what a pataha wicket. जहाँ गेंद करी है, आज समझ आइए रोहित शर्मा के उस टॉस पे जो उसने कहा था कि इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, उसने कहा कि रीज़न क्या है तुम्हारी, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है. तो आज अंदाजा हुआ कि डिफेंड करना. बट ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है, यू नो दैट आल्सो क्रेडिट टू देम दैट उन्होंने एक्चुअली कर लिया. आपने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बनाना जड़ा ना कैंसिल हो जाना. हम रविंद्रा के आपने कहा कि वो 90s में थे, उन्होंने जब छक्का मारा टीम के लिए खेल रहे थे. वो वेरी इंटरेस्टिंग. जो जेम्स नीशम ने नीचे से आके हाफ सेंचुरी की है, जब उनकी 50 हुई, ही डिड नॉट सेलिब्रेट. He did not even bother to acknowledge that he is, because he was focusing on the game, to winning the game. for his team. That was his primary goal. कि मैंने मैच कैसे जीतना है. 50-50 पे सेलिब्रेट कर लेंगे बाद में. That's not a big deal. Imagine if they would have won that game, it would have been a world record maybe. Yeah. So that's where he was tunnel vision जिसे कहते हैं ना. That's what he was in that zone. It was, and what great shots did he play. 148 की strike rate के साथ जिमी नीशम ने खेला और गेम बनाया, but he really took it close, Wasim. And that's the kind of pressure handling skill that you see in modern cricket, and you want to see in modern cricket. Yeah. He's got a knack of playing innings like this, Jamie Neesham, over the years. I've seen him in leagues as well. ऐसी स्टेज पे आता है कि इम्पॉसिबल मैच होता है और उसको जिता के चला जाता है. आज अनफॉर्चुनेट था कि नहीं जीत पाया, बट ही इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर. क्लीन हिटिंग, स्ट्रॉन्ग बॉय, and obviously he's an all-rounder. He can give you a couple of overs in T20 format.
5-4 2 ओवर उसने आज भी किए, although bit expensive, got a wicket as well, and he's a gun fielder. He's a complete kind of an all-rounder for white ball cricket. Yeah, totally. And there's one underlying thing that I can see, जहाँ पे भी आप जितनी भी hitting हम देख रहे हैं, मोइन आपने भी देखा, every batsman that you see there, every batsman from this both innings, पहली भी और दूसरी भी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की, fitness seems to be at the core of it. Paramount. Their arms, their their base, their thighs, their six pack, everything is just. फिटनेस कुछ नहीं होती, स्किल होता है। Who said this? तो सर Yeah, this is Misbah being sarcastic. मैं कोई सियाना ही होना, मैं क्या कोई सियाना ही होना जिन्हें किया सानू तो 2 साल है ही कहते रहने सारे लोग ही। I know. फिटनेस कुछ नहीं होता। It's just remarkable. It's remarkable. They're super fit people. With that, we're going to take a break here. When we come back, we'll talk more about the game on the other side. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app. And our continuing coverage of the ICC Men's World Cup. 2 games in the World Cup today. First up, it was Australia versus New Zealand. Australia defending a great total. New Zealand making a great match of it. उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. And then, of course, Netherlands versus Bangladesh, which Netherlands won. ब्रेक में जाने से पहले हम यही मुख्तलिफ बातों पे बात कर रहे थे कि अचानक जो है वो बात जो इस तरह की निकल पड़ी कि सियाने ने मरवाया था। वसीम, ये आपने अभी ब्रेक में जाने से पहले कहा कि किसी सियाने ने मरवाया था। अक्सर सियाने ने इसका जोक है। इसका जोक क्या है? जरा ये एक बता बंदा जा रहा होता है तो उसका यहाँ से कान वान ना कटा होता है, फटा होता है, नहीं होता, खून हुआ होता है, खून निकला होता है हर जगह। तो साथ एक बंदा गुजरता है, कहता भाजी क्यों होया है? कहता जी किसी सियाने ने मरवाया है। कहता क्यों? कहता सियाने ने क्या से कुत्ता पवे ते बह जाए। वैसे कहते यही है हकीकत, कुत्ता अगर पड़े तो पेड़ पीछे लेकिन आप बैठ जाए या रुक जाए, So obviously, कुत्ता वापस चला जाए। obviously जिस गाय जिसका कान नहीं था उसका कुत्ता नहीं बैठा। So the guys कुत्ता पे तो बैठना ना। Yeah, I mean, I don't know how that works. If you're under attack, run. Exactly. That's really funny. All right, Moin, what is the way forward for New Zealand? Well, I think New Zealand के जो बकाया मैच है, of course they're playing good cricket, good positive cricket. आज भी मैच हमने देखा जिस तरह इंटेंट नज़र आ रहा था और ऑलमोस्ट ऐसा मुझे लगता है कि क्वालिफाई किया हुआ उन्होंने यहाँ से, इतना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। 1-2 हल्की टीमों से उनके मैचेस हैं, बट जिस तरह खेल रहे हैं यू नेवर नो, बड़ी टीमों के खिलाफ भी लाइक सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं, दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द फाइनल्स आल्सो। एक प्रॉब्लम उनकी जो आज लोकी फर्गसन इंजर्ड हो के 3 ओवर करके वो चले गए, दैट कुड बी अ मैसिव ब्लो टू देम। Yeah. इसी तरह से We still don't know the nature of his injury or his. आई थिंक जिस नेचर में भी जिस फ्लेयर में खेल रहे हैं इसी तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए। Right. तो मेरा ख्याल है कि जब आप कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके चांस होते हैं कि आप मैच ले जाते हैं अपनी ऑपोजिशन से। And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, वक्त होगा #AskThePavilion। आपकी स्क्रीन पे आ गए, अपने सवालात, अपने पैगामात भेजिए हम तक, and we'll share it right here on our platform. Don't go away. Keep watching Sports and the Airwise app. Welcome back from the break. आप देख रहे हैं The Pavilion on Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. Now the news today, 2 मैचेस आज खेले गए। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला न्यूजीलैंड था, एक बेहतरीन मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन किए और न्यूजीलैंड तकरीबन चेज कर चुका था, बट a great defending the target there by Australia. Well done, but well done to everybody who played that, and we were all very lucky to see that great game of cricket, because that's what modern cricket is all about. On the other hand, the second game between Bangladesh and Netherlands surprised everyone once again. They really play their hearts out, and they have a lot of method and a lot of planning and then execution of that planning that they do. They keep it simple, they keep it basic, and they're started getting results now. If they have good openers and a little bit of more exposure, they'll be a great team. Congratulations to both Netherlands and Australia, and best of luck to New Zealand, because they're still very much in this World Cup. And with that, it's time for your favorite segment, #AskThePavilion के सवालात जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। ये जनाब है क्रिकेट वाला दोस्त, ओके, आपका हैंडल है @cricketwala_dost _38443। आईसीसी ने अपनी गलती मान ली है। क्या पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच दोबारा होगा? कौन सी गलती मानी है आईसीसी ने? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? तो मैच दोबारा होगा, मैच दोबारा होगा? कौन है ये साहब? क्रिकेट वाला
क्रिकेट वाला दोस्त। आपने जो बात की है ऑपोजिट ऑफ क्रिकेट वाला बात की है। आपने छाबड़ी वाली जैसी बात की है। ये वो डिसीजन की बात कर रहे हो। डिसीजन की बात कर रहे हैं यार, मैच दोबारा नहीं हो सकता। आई सपोज वी आर नॉट प्लेइंग अ क्लब टूर्नामेंट, इट्स अ वर्ल्ड कप। और दूसरा बहुत सारे लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि हम लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे जो अंपायर। हाँ, काफी लोगों ने कहा है बिल्कुल। वो नासिर हुसैन की जो वीडियो चल रही है, या वो क्या होता है, एल्गोरिदम है, वो परसीव करता है, कुछ ऐसे लफ्ज इन्होंने यूज किए हुए हैं बॉल लगने के बाद एंड एवरीथिंग। वो वसीम भाई के विकेट्स आपकी जो 3 स्टंप्स हैं वो थोड़ी सी उसमें बड़ी हो जाती हैं तो मार्जिन उसमें है। इट्स नॉट अबाउट दैट। हमारी बात जो समझ नहीं आ रही लोगों को, ये नहीं आ रही कि हम मान रहे हैं कि इसमें आप ठीक है गलती के गुंजाइश है, एक्यूरेट नहीं है आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फिर वो अगर उसको बॉल को लग रहा है उस तरीके से और अंपायर नॉट आउट दे रहा है तो वो नॉट आउट है। अगर वो आउट भी देता है तो देन इट शुड बी नॉट आउट। हाँ, इन बोथ केसेस वो सेम रहना चाहिए। अंपायर को हम ठीक है कह रहे हैं कि उसके लिए टेक्नोलॉजी एक्यूरेट नहीं है, तो प्लेयर्स के लिए भी वैसे है। या तो उसको आउट रखना है तो आउट रखें, ये नॉट आउट रखना है तो नॉट आउट। ये वाला ये एक एलिमेंट भी जो आप कह रहे हैं निकाल देना चाहिए। और इसको मैं एक रन आपको दे देता हूँ कि क्या है। एक बॉलर ने बॉल कराई, बॉल लगी स्टंप्स के आगे, अपील हुई, रिव्यू में चली गई, एम्पायर ने आउट दे दिया था, बैट्समैन ने वो रिव्यू लिया कि जी मैं रिव्यू लेता हूँ, आई थिंक इट्स मिसिंग। और फिर वो क्या हुआ कि वो जब बॉल ट्रैकिंग आई तो उसने कहा कि जी वो क्लिपिंग थी एम्पायर्स कॉल। तो एम्पायर ने चूंकि आउट दिया हुआ था तो आपने उसको आउट दे दिया। वही अपील दोबारा हम करते हैं और अब की दफ़ा बॉलर ने अपील की और एम्पायर ने आउट नहीं दिया और बॉलिंग साइड ने उसी बॉल को एग्जैक्टली उसी चीज़ को कहा जी मैंने रिव्यू लेना है। और दोबारा वही आपने रिप्ले देखा कि उसी तरह ट्रैक करते हुए बॉल गई और उसने बॉल ने क्लिप किया विकेट को। लेकिन अब क्योंकि एम्पायर ने आउट नहीं दिया था तो आपने कहा जी एम्पायर्स कॉल, तो अब ये नॉट आउट है। तो जो क्रिकेटर्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो लॉजिकल सी बात है, जो सीनियर क्रिकेटर्स भी हैं, मौजूदा क्रिकेटर्स भी हैं, वे कहते हैं जी इसको बस फिक्स कर लेना। अगर वो क्लिप कर रही है तो वो अपील हो या ना हो, मतलब अपील हुई हो या ना हुई हो, इट इज इररिस्पेक्टिव दैट आउट इज एन आउट। जो भी डिसीजन दिया वो हाँ, मतलब एम्पायर की डिसीजन इज इररिलेवेंट, उसको इक्वेशन से निकाल दिया जाए, ये डिबेट चल रहा है। बाकी है कि हर एक का अपना अपना वो है। अच्छा, और इसका नुकसान सिर्फ कल पाकिस्तान को नहीं हुआ। अगर हम पाकिस्तान वाले मैच के हवाले से बात करें, इसका नुकसान साउथ अफ्रीका को भी हुआ है। दे आल्सो गॉट का वो क्लिप था, shouldn't have been an out, shouldn't have been, if it wasn't an out, it shouldn't have been an out, period. So it was bad कि South Africa got damaged by that. Well, not damaged, but they got affected by it and we got affected by it. Right. ये शेख फैसल साहब का हमें आया बड़ा मज़ेदार सा अच्छा मैसेज किया, पूरा नहीं पढ़ा बट मुबारकबाद दे रहे हैं हम सबको। He said he is loving the show, it's a treat for fans and the chemistry among the Fab Five is on cherry on the top. बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेरी अप्रिशिएट इट। ब्रिंग इट ऑन का जनाब ये सवाल है। इनका एक्स हैंडल है given_in, bring it on। आप कह रहे हैं is there any way we can improve the shots timed well or is it just instincts? Like in today's Australia versus New Zealand match, if boundaries are not big, you don't have to go hard, just time the shot well. Misbah. जी बिल्कुल। एक मेरे ख्याल में एक प्राइम एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान में अभी है, सैम अयूब। अभी हमने देखा है और PSL में देखा द वे ही बैट्स, वो को ज़ोर से नहीं मारता शॉटें। और अगर प्रीवियसली आपके दौर में हम देखें, सईद भाई जब खेलते थे तो वो कोई बहुत ज़ोर से टाइम करते थे और टाइम पे वो सबसे ज़्यादा छक्के मारते थे, इवन स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी। Even Mohammad Yusuf, he used to just time the ball. So examples हैं, ज़हीर भाई थे। I suppose Misbah you will भी तो होनी चाहिए पीछे, belief. That's the most important thing। उस clarity है, फिर आपको किस किस्म की environment मिलती है, आपको उस किस्म का freedom, सारी चीज़ें आती हैं। But I think we can। Previously अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन ऐसे आए हैं जो टाइम भी करते थे, जो पावर से भी मारते थे। शाहिद अफरीदी थे हमारे पास, वसीम भाई खुद थे, ये बहुत बड़ी बड़ी हिट्स मारते थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमने कैसे उसको डेवलप करना है खुद और देखना है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब हमारे प्लेयर्स जो नीचे हैं वो देख रहे हैं सारी चीज़ें कि डिमांड क्या है, तो उसके मुताबिक अपने आप को मेरे ख्याल में वो
चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अगला सवाल गजनी अचकजई, आपका एक्स हैंडल है गजनी खान 313। आपने सवाल किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज अ विक्टिम ऑफ क्राइसिस इन एवरी टूर्नामेंट। Will our team ever emerge as a strong team like the Indian team? Gentlemen. Well, I think कि पाकिस्तान प्रीवियसली अगर देखें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एट टाइम नंबर 1 पे भी खड़े थे, लेकिन अगर हम उसको मवाजना करते हैं इंडिया की टीम से, आई थिंक इंडिया टैलेंट वाइज इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर टीम है। हमारी टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम प्रिपेयर, वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की हमने इस वर्ल्ड कप के लिए, और 3 महीने मैंने अभी पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी कहा कि जो फिटनेस का मिसबा बहुत ज़्यादा इन्फसाइज करते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो ड्रेन आउट हो गए। हम 2 से 2.5 महीने श्रीलंका में रहे, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स नज़र आए शैटर्ड हुए हुए थे, बिल्कुल फटीग लग रहे थे, और उसका इफेक्ट फील्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आया कि बहुत ज़्यादा मिस फील्डिंग भी हुई। आई थिंक कि ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए आइंदा के लिए। अब जो होना था वो हो गया, बहुत ही माइनर चांसेस है पाकिस्तान टीम के इस टूर्नामेंट में वो कम बैक कर सके यहाँ पे, बट नेक्स्ट टाइम जब भी वर्ल्ड कप हो बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले अरसे में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटिंग टेक्नोक्रेट्स नहीं थे। अगर क्रिकेटिंग कोई समझ रखने वाले क्रिकेटर्स मौजूद होते तो बेटर प्लानिंग हो सकती थी। वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में जो भी इस वक्त मौजूद हैं उसमें कोई ऐसे क्रिकेटर्स मौजूद नहीं हैं जिन्होंने इस सिचुएशन में इस तरह वर्ल्ड कप खेला हुआ हो या जो गाइडेंस दे सके बेटर प्लानिंग। 2 चीज़ें मैं ऐड करूँगा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। प्लानिंग है आपकी लॉन्ग टर्म, और फिर जब आप ट्रांसफ़र करते हैं चीज़ें, ठीक है चेयरमैन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आपका टीम स्टाफ चेंज हो गया, लेकिन कम से कम वो जो एक आपने प्लान किया होता है लॉन्ग टर्म पे, उनको ट्रांसफ़र तो करें कि कैसे हम, क्या हमने सोचा था और कैसे हमने आगे लेके चलना है। वर्ल्ड कप के साल में जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप 5-6 महीने में टीम मैनेजमेंट 2-3 दफ़ा बदल गई, आपकी सारी चीज़ें बदल, कभी भी कंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती। 6 महीने की प्लानिंग से आप वर्ल्ड कप कैसे खेलेंगे? ऑलराइट, मोहम्मद उस्मान अनवार, आपका एक हैंडल है M उस्मान अनवार, एंड आपका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम टू यू 5 legends. From World Cup 2003 to World Cup 2019, Pakistan out of World Cup early and captains were resigned, and same is expected in World Cup 23 with Babar Qurbani ka Bakra. Same repeating problems and topi drama up till now, but not a single time chairman removed or resigned. Why? नहीं, it happened once. It did, please. It was in 99 I think. 99 वर्ल्ड कप के बाद मुझे हटाया था, और चेयरमैन जो हमारे बेस्ट चेयरमैन थे पीसीबी के हमारे टाइम के, खालिद महमूद साहब, उनको उठाया था। एक तो वो क्रिकेट लवर थे, क्रिकेट पहले से चलाते आ रहे थे, वेरी एजुकेटेड, थॉरो जेंटलमैन, एंड उनको उठाया गया था। सो जो कुछ भी होया पाकिस्तान क्रिकेट मेरे नाल ही होया। You too, Wasim? Yeah. You were a victim too? मेरे नाल ही शुरू है हर चीज। रिबेल भी मेरे खिलाफ रिटायरमेंट लेके गया था वर्ल्ड कप से पहले ही, मैंने तो ऐलान कर दिया मेरा आखिरी होगा वर्ल्ड कप। पहले से तैयार थे, आपने नई स्ट्रेटजी नहीं, मैंने खेलना ही वर्ल्ड। आई हैव अ क्वेश्चन मोहम्मद आदिल, राइट। अब मैं उनका है आदिल_ज़मान। Hello dear, all. I have a question. About today's match, Australia versus New Zealand. We haven't seen any pressure on both sides. We saw power, stamina, and pressure handling. Why don't we have approach like this in Pakistan? What a great question though. What a good question. आप अंदाज़ा लगा लें जो अभी हो रहा है, या एक आधा मैच पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद जो कुछ शुरू हो गया है, तो those pressures are always there. But they are part and parcel of this social media life. I'm sorry, but you just can't get out of it. Players as well. आपकी बात ठीक है, you can handle that. है उसमें काफ़ी दफ़ा ये सुनने में है, पाकिस्तानी स्टाइल जो है क्रिकेट का वो इसी तरह है कि they normally build up their innings and then you know they try to hit boundaries and मतलब 90s वाला कह लें उसको। बट आज जो फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर टोन सेट किए ट्रेविस हेड ने, एक तो क्लियर मैसेज दे दिया तमाम खेलने वालों को, यार पिच बहुत मजे की है। जितने भी बैट्समैन आए उसके बाद आप देखें, जब हमने स्ट्राइक रेट भी देखा था, वो उस चीज़ की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है
कि पिच बहुत ही आला था, यू नो। फिर आप आके शॉट खेलते हैं, इसलिए जब पॉजिटिव माइंड से आते हैं और आप क्लैरिटी होती है आपके माइंड में, तो आपके ज़्यादातर शॉट्स लगते हैं और वो क्लियरली लगे। हमारा स्टाइल ही डिफरेंट है, हम थोड़ा सा डर रहे होते कि डर नहीं विकेट ना गिर जाए, हम बहुत डर रहे होते नहीं विकेट ना गिर जाए, उसमें आपकी बॉलें बहुत निकल जाती हैं जी, डॉट और बॉल। वो जो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना लोग, उन पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। Well, that's unfortunate that we are still stuck in the 90s and we are not playing modern cricket, and that is a big concern for all Pakistani fans around the world. इसके साथ ही हम लेते हैं एक और वक्फे के बाद मजीद सवालात। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हैशटैग आज से पवेलियन का सिलसिला शुरू था। वी आर विद मोइन खान, मिसबाह हक एंड वसीम अकरम। सवाल आया है सात पाशा का, आपका एक्स हैंडल है सा पाशा। सात पाशा पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्वेश्चन फॉर मिसबाह हक। रिसेंटली बाबर एंड रिजवान वेंट टू हार्वर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस and impact did your MBA have on you as a cricketer and captain? बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा इसकी बात करता हूँ क्योंकि MBA के दौरान मैंने मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी पढ़े, लीडरशिप के सब्जेक्ट भी पढ़े, और उससे पीछे जो बैकग्राउंड BSc साइंस का भी बैकग्राउंड, मैथ्स का बैकग्राउंड, तो आप अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बेहतर होती है चीज़ों की। आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टैलेंट वाइज, स्किल वाइज अगर मैं देखूँ तो शायद मैं कहीं पे भी अपने आप को उन क्रिकेटर्स जो ग्रेट्स थे हमारे या दुनिया में इतने भी क्रिकेटर्स वहाँ पे नहीं था। तो एक जो मुझे एज हुआ वो ये ज़रूर हुआ मेरी एजुकेशन की वजह से, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, वो अपने रिसोर्सेज को या जो भी टैलेंट था उसको मैक्सिमाइज़ कैसे करना था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और dealing with others, knowing their personalities during my captaincy tenure, that helped me a lot. All right, thank you. Zach 456 आपका हैंडल भी है, Zach 456। आप कह रहे हैं पाकिस्तान played modern cricket at the time of Saeed Anwar, Amir Suhail, Shahid Afridi. Even in 99, Pakistan scored 8 or 9 runs an over in last 10 overs. We just lack awareness and mental strength. Comment, gentlemen. मोइन, ये आप ही लोगों का है बेसिकली, इसकी वो बात कर रहे हैं कि उस जमाने में भी तो 9-10 रन हमारे टाइम में आई थिंक एक तो देखिए लीडरशिप जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वसीम भाई के साथ इतनी क्रिकेट खेली है, बहुत कुछ सीखा इनसे। इनका बड़ा क्लियर होता था। एक तो मीटिंग्स बहुत कम होती थी और सारे जो प्लेयर होते थे वो दे यूज्ड टू डू द एक्शन ओनली, और बिलीव भी करते थे उसके ऊपर। बड़ा प्रिसाइज मैसेज होता था हमेशा जब भी वसीम भाई ने मीटिंग की, कि जो प्लान्स होते थे उसमें क्लैरिटी होती थी। जब क्लैरिटी होती है तो मैसेज कन्वे करना अपने प्लेयर्स को बहुत इजी होता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अब इतनी ज़्यादा डेटाबेस हो चुकी है क्रिकेट, यू नो, मुश्किल है प्लेयर्स के लिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है खिलाड़ी, क्योंकि हमारा जो मेनली बैकग्राउंड होता है बड़ा हम्बल होता है, स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुई थी। जैसे अभी मिसबा ने एग्जाम्पल दिया, यू नो, इनको स्टडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यू नो। तो ये वो चीज़ है जहाँ हम थोड़ा सा लैग करते हैं। जितना आप इन प्लेयर्स के साथ कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाती है और प्लेयर उसको सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आते कि एक तो क्लैरिटी होनी बहुत ही ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं, आप मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको इंस्टेंटली नज़र आ रहा है कि हम किस तरह की, किस तर्ज की क्रिकेट खेल के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। हम कब करेंगे अडॉप्ट? और देख के भी नहीं कर रहे। लाइक हम सारे मैचेस देखें, हमारे जो प्लेयर्स, जो बैट्समैन स्पेशली, उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है वो हमें नज़र नहीं आया कहीं भी। वो किसी भी अटैकिंग मोड के अंदर गए हो या कोई काउंटर अटैक मोड में गए हो, आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा हो, तो हमने टोटली डिफेंस की तरफ रहे। तो ये अप्रोच जो है, ये मेरा ख्याल है कि मॉडर्न डे में नहीं चल सकती। पाकिस्तान को क्रिकेट में अपनी सोच को तब्दील करना होगा और इसका इनिशिएटिव यकीनन इस वर्ल्ड कप के बाद टोटली रिवैम करना पड़ेगा आपको। अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई दैट कि हाउ यू गोना प्ले द मैचेस, हम उसी तरह पीछे ही रहेंगे जो हमारे और स्पोर्ट्स का हाल हो चुका है। ये भी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं इसमें। अच्छा जी, ए रहमान का सवाल आया है। ए रहमान, आपका ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है अब्दुल रहमान, और आपने सवाल किया, आई डोंट थिंक more games played to be blamed for poor performances.
They are athletes and 15 selected from thousands of players. Their fitness and stamina should be top notch, no matter how many matches they play. Your views? I agree. They are professionals. They get paid to do this, and they should be at prime of their fitness. Especially young ladke hain, young team hai, and yeah, I agree with you. But unfortunately, that's not the case. That is unfortunately not the case. Pankaj Mishra. Pankaj Mishra, आपका X handle है Pankaj M83475580. But Pankaj Mishra, good evening, legends. The program is really good. You guys bring a lot of varieties. My question is whether expressing religion by a sportsman on the ground in the field is good for cricket, or it should be personal. I'm comparing cricket of 80s and 90s and now. It's a sensitive question, but a very interesting one. Would you care to answer, anyone? Gentlemen, well, or it should I take it depends up? on your अपना belief है. There you अपना go. belief They है, can do So whatever Pankaj, they as want. much as I understand and where this question is coming from, religion is a very personal matter. It's a very private matter. It's for every individual, and I don't think we should be concerning ourselves with that. If somebody is expressing their religious beliefs, everybody on this God's earth has the right, the freedom to express and practice their faith the way they like to. We as human beings, good sports lovers, all we need to do is respect everyone, each other and their beliefs and their ideologies and their practices, and just make sure that we all live in peace and harmony and enjoy moments and create a lot of memories and witness a lot of good, great cricketing history. So, yes, please, Wasim, go ahead. No, I just said. Oh, okay, thank you. Yes, thank you very much. Appreciate it. Right, next up, I have another question coming in. Zulkarnain Khosa, most of the boards having different teams for each format. But when one of our players, due to fitness concerns or wants to prolong his career and says, I will only play a certain format, then he is dropped from all the formats. And we already spent a lot of money on them. Your comments. Zulkarnain Khosa, आपका X handle है Zulkarnain HR. Gentlemen. Look, Zulkarnain, मैं तो board में कभी रहा नहीं, so I exactly don't know how it works, and I think Misbah can answer it better in a way. मेरे ख्याल में ये एक इम्प्रेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है. लोग खेले हैं, उन्होंने फॉर्मेट छोड़े हैं, उसके बाद भी काफ़ी क्रिकेट खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे के लोग, किसी ने T20 खेली है या वनडे खेली है. मैंने T20 और वनडे छोड़ने के बाद टेस्ट क्रिकेट खेली है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. बात यह है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने उस सेटअप में खेल रहे हैं, अपने आप को आप उस सेटअप में रखते हैं और अवेलेबल रखते हैं टीम के लिए. और अगर आपकी सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि ये प्लेयर हमारे लिए अवेलेबल भी है और हमारे लिए इसका फ़ायदा भी है टीम को, दे पिक देम. ऐसी बात नहीं है कि वो इस वजह से किसी को नहीं पिक किया जाता. जी बिल्कुल सही. मोहम्मद सलमान सईद, आपका एक्स हैंडल है वोटा गो क्यू. एंड Assalamu alaikum. Players like Pandya, Stokes, Nisham consistently contribute to their respective teams. Why doesn't Pakistan actively seek such fast bowling all-rounders? What has led Pakistan to predominantly rely on spin bowling all-rounders in recent times? I think overall देखा जाए टैलेंट वाइज मुझे ऐसा लगता है जब आप टॉप लेवल पे खेल रहे होते हो तो आपका टैलेंट ऑलमोस्ट बहुत करीब ही होता है. लाइक बहुत ही मार्जिनल फ़र्क होता है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर डे के ऊपर या उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के ऊपर आप अपने आप को किस तरह अप्रोच करते हैं बहुत मुश्किल ज़रूर होता है. बट एज अ प्रोफेशनल ईजी भी होता है. यू नो, आप खुद अगर प्रेशर को दावत देंगे कि मेरे ऊपर हावी हो जाए, वो तो देर नहीं लगाता. यू नो, आई थिंक मोइन वो नहीं था कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं. मैं एक थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा. जब सबसे बड़ी जो मैंने क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है, इवन अंडर 19 भी उसको भी फॉलो किया है. देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट अंडर 13 है, अंडर 16 में कॉन्सेप्ट ये है, आज तक मैं सरप्राइज होता हूँ कि इफ़ देयर इज़ समवन जो बैटिंग अच्छी करता है और बॉलिंग भी उतनी अच्छी करता है, उसको बॉलिंग मिलती ही नहीं है कि तू बैट्समैन है सिर्फ बैटिंग कर. बॉलर हैं जो रेगुलर वो बॉलर, तो भाई ऑलराउंडर कैसे बनेगा इस माइंडसेट के साथ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान दुनिया की जितनी भी टीमें हैं डोमिनेट कर रही हैं. जो आपने बात की कि पांड्या
जो टॉप 6 में अगर आपका कोई बैट्समैन है, जैसे अब्दुल रज़ाक था हमारे पास, चले हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर थे लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर साथ फास्ट बॉलिंग करते थे। कैलिस की मिसाल देख लें, अभी आप बिल्कुल शेन वॉटसन की एग्जांपल देख लें, अभी बेन स्टोक की एग्जांपल देख लें। वही टीमें टेस्ट T20 वनडे में वो डोमिनेट पांड्या की एग्जांपल दे दे। तो जब ये से वर्कलोड मैनेजमेंट आई है ना, तब से ये हुआ नहीं। बट मेरा एक सवाल है, मोइन भाई नीचे से आपको मैं वो एक सेकंड, सो आई विल सर आई एम गोइंग टू इंटरप्ट हियर। आप ये कह रहे हैं कि नीचे से ये हो रहा है कि नीचे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास लेवल के अंदर वो उनको बॉलिंग ही नहीं देते। सो ये क्या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए पॉलिसी की कि जनाब आपको बॉलिंग और हमें ऑलराउंडर्स चाहिए, मेक श्योर कि अगर कोई लड़का भी पोटेंशियल दिखाता है तो उसको वो ओवर्स दिए जाएं, और ये मतलब इस तरह का एक क्लियर पॉलिसी हो ना, इट्स लाइक अ पॉलिसी टू बी मेड। Consistent leadership. फिर वही बात आ जाती है, जख्मों पे नमक ना छिड़के कि भाई हमें प्रोडक्ट इस टाइम चाहिए कौन सी, कहाँ हम लैग कर रहे हैं। हमारे पास फास्ट बॉलिंग है, हमारी टॉप 6 में कोई मीडियम पेस या फास्ट बॉलिंग That's a very good word that you've just used कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हमें अपनी फैक्ट्री को पीछे बताना है कि भाई प्रोडक्ट लाइन से हमें कि ये प्रोडक्ट चाहिए। नेशनल हाई परफॉर्मेंस का यही काम था, जिसको नेक्स्ट बोर्ड ने आते ही फिर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में तब्दील कर दिया। यू नो मोइन जो म्यूजिकल चेयर चल रही है तो अब उसके कोई भाव होते हैं करती है ना, हमें ये नहीं कि सो मैं आपको एक और चीज बताऊं, आई थिंक मे बी द कन्वर्सेशन शुड नॉट बी मोइन कि उस बोर्ड ने ये किया या उस बोर्ड ने ये किया। तो कन्वर्सेशन शुड बी वेरी क्लियर कि सारे के सारे बराबर के शरीक थे और सारे के सारे बराबर के जिम्मेदार हैं। और जो कन्वर्सेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए मोइन कि ये म्यूजिकल चेयर्स बंद होनी चाहिए। अभी ये जोर आपको किस चीज पे लगाना चाहिए कि ये म्यूजिकल चेयर्स बंद होनी चाहिए। ये कहना, ये अगेन हम खुद रास्ता दे देते हैं कि आप पिछले बोर्ड पे लगा दीजिएगा, वो जी इससे जो पिछला बोर्ड था उससे ये कर दिया। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड हैव दैट। देखिए हर डिपार्टमेंट की जिस वक्त कोई भी चेंज होता है, नया बोर्ड आता है, एक हैंडिंग टेकिंग ओवर प्रॉपर हाँ, उसका एक प्रॉपर कंटिन्यू क्या काम चल रहा था, किसको कंटिन्यू करना है। अगेन दैट आई आल्सो दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग, यू आर राइट कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और एनीवे दैट्स अगेन अस गोइंग ऑन, आप और हम लोग तो बात करते रहेंगे। आई नो आई कैन सी दैट वसीम आउट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। चले आपको मैं दोबारा चेक इन कराता हूं, फर्क नहीं पड़ना, पहन में तानु चेक इन कराता हूं। हम यहां चीखते रहेंगे, नथिंग्स गोना मेक अ मैं एक डिफरेंस। छोटी सी बात करूंगा आपके पास। देखें हम ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें, आमिर जमाल खेला, साल हो गया, साल तकरीबन हो गया उसका डेब्यू हुए, 140 प्लस पे बॉल करता है। अभी भी उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं ट्रॉफी के मैचेस में, 80 किया है, 40 क्विक फायर 40, पोटेंशियल है। इस साल पहले खेला था और हमें ज़रूरत है, राइट। अगर हम देख रहे हैं कि बाकी ऑलराउंडर कोई हमारा नहीं कर रहा, हमें ज़रूरत है, तो वर्ल्ड कप तक क्यों नहीं हमने उसको, मतलब उस पर हमने काम नहीं किया, कहीं पे भी नहीं है। वो शाहीन में जाता है, ठीक है। मुस्लिम मुझे फ़ोन नहीं किया, LPL में ये बीलव कैंडी के साथ था, हमारी टीम के साथ था। नो सेलेक्टर, नो बडी कॉल्ड के बता दें कैसी बॉलिंग की इसने, इसकी फॉर्म कैसी थी अभी फर्स्ट, यू नो, वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले। नो बडी। अब न्यूजीलैंड के एग्जांपल लें ना, उन्होंने कितने प्लेयर हैं कि जो जब आए थे, दे आर कैरिंग नीशम जो कि अब उनका मेन, और कितने प्लेयर हैं उनको उन्होंने ज़रूरत के तहत कि भाई हमें ये चीज़ ज़रूरत है, स्पिनर्स को देख लें, ईश सोडी कितने अरसे से डेवलप किया उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टीम की ज़रूरत को। मतलब हमें, हमारे पास ये एक बहुत बड़ा इशू, हमने अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, अब चौथा सीमर अगर आपके पास वहाँ नहीं है ऐसा कि जो 7 पे या 6 पे बैटिंग कर सकता है, आप पर्थ में खेलेंगे आपको मुसीबत पड़ जाएगी। आप खिला नहीं सकते जी, बैटर, कीपर एंड 4 बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट, स्पेशली द वे फिटनेस इज, you need to have 4.5 5 और bowlers। आपके 15 दिन कितने 20 दिन रह गए हैं टूर में, और अभी तक आप हमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जिस तरह वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल एंड मौके पे पता चला था ना, टूर पे भी हमें 14 December is the first test match, that too at लोगों ने कहना कि टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन मैं, तो मैं भाई डायरेक्टर क्रिकेट नहीं है ना, मैं सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हूं। फिर करते क्या है? एक मिनट बच्चा यार, बट एग्जैक्टली देन व्हाट इज योर रोल टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन? आप उधर भी नहीं, उधर भी नहीं, उधर रोल की है फिर सानू है। वर्ल्ड कप देखता हूं आपके साथ बैठ के, तबसरे करता वैसे मेरा रोल है को पूछणगे तो मैं दसांगा, काम का नहीं पूछणगे तो मोइन भाई की तरह मैं तानू नहीं दसांगा, इंज जाना है। We're going to take a break. When we come back, few more words. Welcome back to the Pavilion. और
you know what? It's almost the end of the day. We've had a long day here in the Pavilion. But let's take a look at what we have in store for you in the ICC Men's World Cup tomorrow. कल आपके लिए आ रहा है एक बड़ा जबरदस्त मुकाबला. It's India versus the defending champions England, who are struggling a lot. लखनऊ से ये मैच 1:30 बजे आपकी खिदमत में आना है बराह रास्त, और हम आपकी खिदमत में ब्रॉडकास्ट लेकर आएंगे पवेलियन की कल दोपहर को 12 बजे. And with that, I'd like to say thank you, Moin, thank you, Misbah, and thank you, Wasim. We are going to be back here tomorrow 12 noon and talk about this very good game of cricket that we're about to see. It is India that is dominating, that is unstoppable, and England that is feeling the pain. Let's see how this one goes. We'll see you tomorrow 12 noon. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Be kind to each other. Good night.